अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आयोनिक बॉन्डिंग का पार्ट 2। दैट वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ आयोनिक बॉन्डिंग। आई होप आपको पार्ट 1 समझ में आया होगा एंड इंशाल्लाह आज हम आयोनिक बॉन्डिंग किस तरह से होती है और आयोनिक बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उन सब के कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। एंड इफ़ यू वांट नोट्स of all the previous chapters as well, we have covered with ionic bonding as well, so you can order us. आप email कर सकते हैं हमको and you can like our Facebook page and inbox us on Facebook as well. So coming towards the chapter objectives, firstly we'll study के ionic bond किस तरीके से बनता है। आपको नजर आ रहा है, it is written transfer of electrons. So ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कोई ना कोई लेना देना होगा आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन से। दैट इज व्हाई इट इज रिटन। सो वील स्टार्ट फ्रॉम हाउ इट इज फॉर्म्ड, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में होते हैं। वील डिटरमिन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। अब से पहले तक हम लोगों ने केमिकल फॉर्मूला कंपाउंड्स में पढ़ा था, कुछ जनरल रूल्स हमने पढ़े थे कि हाउ डू वी write the name of a compound, what are the general rules for writing chemical formula of compounds। तो हमने ये सब पढ़ लिए हैं। Now we'll study how will we form the chemical formula of a compound। We'll come on towards the structure of ionic compound. What is giant lattice structure of an ionic compound? We'll study that. Don't worry, I'll teach you in detail। And finally we'll be studying physical properties, जिनमें 3 physical properties we'll be studying: high melting and boiling points, solubility in water and organic solvents, and finally we'll study electrical conductivity। तो ये सारी चीजें हैं जो हम आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। So the first topic here is ionic bond, which is transfer of electrons. When a metal reacts with a non-metal, the metal atoms transfer their outer electrons to the non-metal atoms। मेटल हमने पढ़ा था लास्ट पार्ट में कि जो मेटल्स होते हैं जनरली दे लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल्स टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो जब मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, सो मेटल ट्रांसफर देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स टू द नॉन मेटल एटम्स। As a result, cations और anions form होते हैं। Ionic bonds are the strong electrostatic forces of attraction between positive and negative ion। जब मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल में ट्रांसफर किए तो हुआ ये कि मेटल कैटाइंस बन गए और नॉन मेटल एनाइंस बन गए। एक में पॉजिटिव चार्ज आया, एक पे नेगेटिव चार्ज आया। इन दोनों अपोजिट चार्जेस होने की वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डेवलप हुई जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। अट्रैक्शन होती है दो आयंस के दरमियान एंड इसकी नतीजे में बॉन्ड्स बनते हैं जो कि कहलाते हैं आयोनिक बॉन्ड्स। दैट इज व्हाई इट इज रिटन आयोनिक बॉन्ड्स आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। Compounds containing ionic bonds are termed as ionic compounds। It is pretty obvious। For example, अगर सोडियम मेटल को हमने रिएक्ट कराया क्लोरीन के साथ, so it will form an ionic compound which is called table salt or sodium chloride। Moving further, steps in formation of ionic compound, कौन कौन से steps होते हैं? We'll see it through with the help of diagram also। We can show formation of ionic compound with the help of dot and cross diagram। Dot and cross diagram क्या होती है? It represents electron of an atom। Dots and cross जो हैं वो electrons, दोनों electrons ही represent करते हैं, but dots will represent electron of one atom while the crosses will be represent the electrons of another atom। अगर हम एक डायग्राम, एक एग्जाम्पल देखें, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड इन NaCl starting with point 1, a sodium atom because it is metal, उसको octet बनाने के लिए it will
lose its outer electron. As a result, sodium cation will be formed. सोडियम ने यहाँ पे अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है it will lose, और क्लोरीन एटम है since it is a non metal, octet बनाने के लिए it will gain one electron. So a chlorine atom gains an electron while a sodium atom loses an electron. सोडियम कैटायन बन गया, क्लोरीन का एनायन बन गया. यहाँ पे आपको चार्जेस भी नजर आ रहे हैं. सो इन दोनों, सिंस दे आर opposite charges, one is positive, another is negative, so electrostatic force of attraction will hold the sodium and chloride ions together. Electrostatic force of attraction यहाँ पे फॉर्म होगी, जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड which is an ionic compound will be formed, और आयनिक कंपाउंड के अंदर आयोनिक बॉन्ड होता है. आपका कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर करने के लिए we'll see another example which is the formation of magnesium chloride. आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही होगी किस तरीके से फॉर्म हो रहा है. स्टार्टिंग विद स्टेप 1, व्हेन वी सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं. क्लोरीन एटम के लिए हमको, क्योंकि इसको ऑक्टेट बनाना है, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो एक क्लोरीन एटम काम नहीं करेगा, यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम काम करेंगे. व्हाई? बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको लूज करने हैं, और क्लोरीन एटम कैन ओनली गेन 1 इलेक्ट्रॉन. सो 2 क्लोरीन एटम्स विल वर्क हियर. ईच क्लोरीन एटम विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन. एक क्लोरीन एटम ने यहाँ पे किया, एक क्लोरीन एटम ने यहाँ पे किया. एज अ रिजल्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन विल होल्ड द मैग्नीशियम एंड क्लोराइड आयंस टुगेदर. तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा. मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक क्लोरीन एटम ने यहाँ पे लेफ्ट पे गेन किया, एक ने राइट पे गेन किया. दैट इज व्हाई इट्स फॉर्मूला इज MgCl2, 2 because chlorine has 2 atoms working here. सोडियम क्लोराइड में सिर्फ एक एटम वर्क कर रहा था, बिकॉज जो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था दैट वाज ओनली 1. बट इन मैग्नीशियम अगर उसको ऑक्टेट बनाना है, सो it will have to lose 2 electrons. That is why 2 chlorine atoms are in work here. Moving further, determining chemical formula of ionic compounds. All the positive charges must equal the negative charges in an ionic compound. मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था, सबसे पहले जिस पे हमने पॉइंट स्टार्ट किया था, इट वाज के जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं they must be equal, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस बनानी है हमने. स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए सारे चार्जेस इक्वल होंगे, तो फिर हमारे पास कंपाउंड बनेगा which would be stable. So we can construct the formula of an ionic compound by balancing the charges on the positive with those on the negative ions. किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं फॉर्मूला कि हमको चार्जेस बैलेंस करने, जितने पॉजिटिव आयंस हैं उतने ही नेगेटिव आयंस हो. कैल्शियम क्लोराइड का आप एग्जांपल अगर देखें, कैल्शियम के जो आयंस होते हैं दे आर 2 पॉजिटिव, बट क्लोरीन का आयन एक नेगेटिव होता है. बिल्कुल वैसा ही केस है जैसे हमने लास्ट मैग्नीशियम क्लोराइड का पढ़ा. सो कैल्शियम हैज 2 पॉजिटिव चार्जेस, बट क्लोरीन आयन हैज ओनली 1 नेगेटिव चार्ज. देयरफॉर देयर मस्ट बी 2 क्लोरीन आयंस टू बैलेंस आउट. हमेशा यहाँ पे 2 क्लोरीन आयन ही होने चाहिए, बिकॉज कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं. इट्स आयन इज 2 positive. Therefore, chemical formula of calcium chloride is always CaCl2. There is 2 always in the subscript. We can deduce the chemical formula of an ionic compound by using the following steps. Firstly, with respect to the charges हम लिखेंगे, for example X एक compound है, Y another compound. One is forming a cation, another is forming an anion, and we are considering is cations with M charge and anions with N charge. So we'll be using them in subscript diagonally. I'll explain this with examples as well. Move the values M and N diagonally, जो मैंने अभी आपको बताया, but without the charges. Without the charges से मुराद ये कि we'll not use the positive and negative sign. We will only use M value and N value.
सो इस तरीके से जो केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा, m would go towards the subscript of y while n will go towards the subscript of x. So x n y m, the ionic compound formula will be like this. आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि किस तरीके से हमने डायगोनली यूज करके केमिकल फॉर्मूला डिड्यूस किया है. आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए I'll show you a couple of examples also, जिससे आप लोगों को आसानी हो जाए. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, उसको किस तरीके से हम कर रहे हैं. आयंस जो प्रेजेंट हैं, वन इज एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव वाइल ऑक्सीजन हैव, ऑक्साइड आयन हैज 2 नेगेटिव. सो डायगोनली हमने इनको यूज किया विदाउट टेकिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस. जो फॉर्मूला बनेगा दैट वुड बी Al2O3. अनदर एग्जाम्पल is of magnesium oxide. Magnesium का ion 2 positive है while oxide has 2 negative, but it is an important example जिसमें आपको नजर आएगा since the charges 2 positive and 2 negative cancel out exactly. जितने यहाँ पे ions हैं उतने ही यहाँ पे हैं. It I mean to say कि charge जो है वो exactly same है. यहाँ पे 2 plus है तो वहां पे भी 2 negative है. It's not 3 negative or only negative. So exactly cancel out हो रहा है. तो सबस्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं होती अगर हमारे पास exactly मैग्नीट्यूड में, सेम मैग्नीट्यूड में चार्जेस कैंसिल आउट हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के आयन 2 पॉजिटिव हैं, ऑक्सीजन के 2 नेगेटिव हैं, कंप्लीटली कैंसिल हो गए तो सबस्क्रिप्ट में लिखने की जरूरत नहीं होती. So that is why we do not write Mg2O2. We only write MgO. Moving further towards the giant lattice structure of ionic compounds. किस तरह से का इनका स्ट्रक्चर होता है. Ionic compounds form giant lattice structures. क्या होते हैं ये? For example, अगर मैं आपको टेबल सॉल्ट की एग्जांपल दूं, it is a common example of ionic compound. Sodium ions and chloride ions are very strongly attracted towards each other. क्यों होते हैं strongly? Because they have very strong forces of attraction. The ions are held together by strong ionic bonds. ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई हैं. It is just for your going through. Ions are packed in a regular and repeating pattern. जब मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊंगा, you will be able to understand it more thoroughly. The giant lattice structure is held together tightly because oppositely charged ions attracts one another strongly. You should know this. क्योंकि oppositely charged ions हैं तो उनमें बहुत strong electrostatic forces of attraction होती हैं. That is why they are held together in the form of giant lattice, or commonly we can say it crystal lattice also. An example of the structure of table salt is given below. आपको नजर आ रहा है किस तरह क्यूबिक फॉर्म में टाइटली पैक्ड हैं ये. 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है क्रिस्टल लैटिस का, जाइंट लैटिस का. इट इज सेम थिंग. डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद इफ आई एम सेइंग क्रिस्टल लैटिस. दे आर बोथ आर सेम थिंग्स. दे आर हेल्ड टुगेदर इन अ रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न. आपको नजर आ रहा है रिपीट हो रहे हैं इसी तरह से many millions of ions of sodium and chlorine. Each positive sodium ion is next to a negative chlorine ion and vice versa. ये इसी तरह से रिपीट हो रहा है. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से क्यूबिक फॉर्मेशन में टाइटली फॉर्म्ड है. The giant ionic structure is held together very tightly because oppositely charged ions attract one another very strongly. तो पता है बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये टाइटली हेल्ड हुआ हुआ है. बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं एग्जांपल दूं, हमने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी पार्ट 1 में 3 तरह की चीजें पढ़ी थी. दैट वर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. और सॉलिड्स की भी इसी तरह की फॉर्मेशन थी. क्यों? वो भी एक लैटिस की फॉर्म में. व्हाई? बिकॉज दे वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वहां पे पार्टिकल्स, for example of solids, and यहाँ पे ions in terms of ionic bond, they will be very tightly held. And that is why, एक आगे की मैं आपको बात बताता चलूं for your information, कि इतने strong forces of attraction होती हैं. इसी वजह से normally जो हमारे पास ionic compounds होते हैं, they are solid at room temperature and pressure. You will come to know this
when we study the properties of ionic compounds. And one more important thing which I have to tell you here is this: the ratio of sodium ions to chloride ions is 1:1. किस तरह से आपको ये नजर आ रहा होगा कि each sodium ion is occupied by, अगर इन टर्म्स ऑफ मैं क्यूबिकली देखूं यहाँ पे तो आपको 4 नजर आ रहे होंगे, लेकिन अगर 3 डायमेंशन में हम देखेंगे तो हर सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयंस के साथ टाइटली पैक्ड होगा, अराउंड 6 क्लोराइड आयंस होंगे. सिमिलरली अगर मैं क्लोराइड आयन को देखूं, इट विल आल्सो बी टाइटली पैक्ड अराउंड 6 सोडियम आयंस. सो एग्जैक्टली सेम फॉर्मेशन है. सो दैट इज वाई इनका रेशियो 1:1 है. दैट इज अगर हमको लैटिस के थ्रू, एक तो मैंने आपको केमिकल फॉर्मूला इनके चार्जेस के थ्रू निकालना बताया, अगर लैटिस को देख के हमको फॉर्मूला डिड्यूस करना हो तो हमको ये नजर आ रहा है कि इनका रेशो 1:1 है. हर सोडियम आयन के साथ एक क्लोरीन आयन है. और अगर इन टर्म्स ऑफ 3 डायमेंशन में बात करूं तो हर सोडियम आयन के अराउंड 6 क्लोराइड आयंस हैं और हर क्लोराइड आयंस के अराउंड 6 सोडियम आयंस हैं. एंड दिस कीप्स ऑन रिपीटिंग. सो हेंस द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज NaCl because ratio 1:1 का. Moving further to the physical properties of ionic compound, I have told you we'll study 3 physical properties. They are high melting and boiling point, solubility in water we'll see, and solubility in other organic solvents, and finally we'll study electrical conductivity. So the first property we'll be studying is high melting and boiling point. Most ionic compounds have very high melting and boiling points. क्यों? Because exactly बिल्कुल वैसी चीज है जिस तरह हमने solids में पढ़ी थी. They have strong forces of attraction between oppositely charged ions. अगर इनको हमको ब्रेक करना है तो very large amount of heat energy is needed. जितनी ज्यादा heat energy हमको चाहिए होगी, which means उनके boiling point and melting point will become high. Why? Because they have very strong forces of attraction between oppositely charged ions. Due to their high melting and boiling points, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, most ionic compounds are solids at room temperature and pressure. Why? Because they have very high melting and boiling points. And we can conclude this that ionic compounds are non-volatile. So आप लोगों को पता होगा, मैं आपको बता चुका हूं, when we studied in kinetic particle theory part 2 what was evaporation and what are volatile matters and what are non-volatile matter. volatile matters वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे भी evaporate होना शुरू हो जाते हैं before even their boiling point. But since in terms of, in the case of ionic compounds, because they are very strongly attracted towards each other, their ions are very strongly attracted and they have very high melting and boiling points. That is why they are solids at room temperature as well as they are non-volatile. Moving further, checking their solubility in water and other organic solvents. Ionic compounds are usually soluble in water and they are insoluble in organic solvents. But there are some ionic compounds like silver chloride and barium sulfate. They are insoluble in water, but there is exception of very few compounds. Most of the ionic compounds are soluble in water. Ionic compounds जो मैं बता चुका हूँ, they are insoluble in organic solvents. Organic solvents वो होते हैं जो कि they are like oil, petrol and turpentine. They are called organic solvents. क्यों most of the ionic compounds are soluble in water? Why? Because the water molecules are attracted towards ions. When we put and we pour an ionic compound in water, since water molecules are attracted towards the ion, it will lead to the electrostatic forces becoming weak between the ions. Kyun? Because now they are attracting more towards water. As a result, the ions are pulled from the lattice structure and the compound dissolves to form aqueous solution. जिस तरह मैं aqueous solution आपको बता चुका हूँ. तो वाटर आयंस को अट्रैक्ट करता है ज्यादा. जब वाटर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो जो
उनकी अपनी आयंस की अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगी. एज अ रिजल्ट द कंपाउंड विल स्टार्ट टू डिसॉल्व इनटू वाटर. इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्योंकि वाटर वहां पे प्रेजेंट ही नहीं होता, सो कोई भी फर्क नहीं पड़ता उसकी सॉल्युबिलिटी पे. कंपाउंड वैसे ही टाइटली हेल्ड होता है, एट्रैक्शन फोर्सेस की वैसी ही रहती हैं उनमें, बिकॉज देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ वाटर. Moving further to our last property, that is electrical conductivity. Ionic compounds conduct electricity when they are in molten state or in aqueous solution. अगर वो water में dissolve हो जाएं या फिर उनको हम melt कर दें, दोनों cases में ionic compounds electricity conduct करते हैं, but they do not conduct electricity in solid form. क्यों? Because when to conduct electricity there should be free moving ions or electrons. जबकि अगर हम सॉलिड फॉर्म में देखें, लेटिस स्ट्रक्चर होता है इनका तो टाइटली हेल्ड होते हैं. देयर आर नो फ्री मूविंग आयंस और फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज व्हाई दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड. यही चीज इसमें लिखी है. व्हेन एन आयनिक कंपाउंड इज मोल्टन और डिसॉल्व्ड इन वाटर, cations and anions are free to move. So when they are free to move, they are available to conduct electricity. Keep in mind, to conduct electricity, the electrons or ion must be free to move. It is only in the case of molten or in aqueous solution. However, there are no free moving ions to conduct electricity in solid state because they are held in place in lattice structure, जो मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं. आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूं. एक टेस्ट अगर किया हमने तीनों स्टेट्स का सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड की, तो हमको नजर आ रहा है सर्किटरी में कि मोल्टन स्टेट में और एक्वस स्टेट में, इन दोनों स्टेट्स में बल्ब जल रहा है. हमने सर्किट कंप्लीट किया. इट मींस के कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन में. बट अगर हम सॉलिड सोडियम क्लोराइड रखें तो बल्ब डज नॉट लाइट अप, विच मींस इन सॉलिड फॉर्म इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती आयनिक कंपाउंड्स की. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज कंप्लीट चैप्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. हमने पार्ट 2 में पढ़ा किस तरह से आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट एंड क्रॉस मॉडल. हमने कपल ऑफ एग्जांपल्स की. हमने पहले पढ़े थे कि किस तरह से रूल्स होते हैं कंपाउंड्स को नेम करने के और केमिकल फॉर्मूला के. आज हमने ये पढ़ा कि केमिकल फॉर्मूला किस तरह से हम डिड्यूस कर सकते हैं विद अ कपल ऑफ एग्जांपल्स एज वेल. इफ यू ऑर्डर द नोट्स, आपको डिटेल में और एग्जांपल्स भी मिलेंगी और इन चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया गया है in the notes as well. You can order on our Facebook page and as well as through our email. And finally हमने इनका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज पढ़ी. तो ये आज हमारा कंक्लूड हो गया है आयनिक बॉन्ड. एंड आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी. होपफुली कोई भी चीज आपको समझ ना आए, यू कैन ऑलवेज कमेंट ऑन माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. अपने फ्रेंड्स को और अदर स्टूडेंट्स को जो भी जिनको भी प्रॉब्लम हो इसमें, आप उनको ये रिकमेंड कर सकते हैं चैनल. आई विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोस. केमिकल बॉन्डिंग का ही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे हम. इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल बी स्टडीइंग कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. आई विल टीच यू इन डिटेल अबाउट दैट ऑल्सो. सो कीप ऑन सब्सक्राइबिंग माई चैनल, कमेंटिंग, like and share as much as you can. I'll be back soon with a new video. Thank you and Jazakallah.